Hi everyone, welcome to EduTab and welcome to this particular video. So students, I know many of you have now started preparing seriously for NABARD grade A examination and many of you have a doubt regarding ARD section and many of you are in confusion or in the state that you have to start ARD preparation, you have to start ARD static preparation, but you do not have a right approach or you are not confident enough that with your preparation or with your strategy whether you are doing the right thing or not, because we know agriculture and rural development subject is very important for this examination and many of you might not have read this subject in your college or ever before, right? So many of students were asking me that मैम ARD कैसे पढ़े, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है और सब्जेक्ट आता है बट एग्रीकल्चर नया सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको स्टैटिक सब्जेक्ट भी है, कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, सो इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे करें. So that is why I have come up with this video, and in this video I am going to tell you each and everything that how you can start preparing for this subject, that is agriculture and rural development, for your NABARD grade A examination. So that is the agenda of this video, and if you want to know how you have to prepare for this subject, you can watch this video, okay? But before that, I have a request. If you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download this PDF or any other PDF regarding NABARD and NABARD examination, you can join us on our Telegram channel. So with that, let's start our today's video, that is on how to prepare ARD, that is agriculture and rural development, right? Now students, here you have to understand one thing, that for any subject, be your ARD or ESI, there are two type, or you can say we have divided it into two parts, that is static and current affair, right? Static part is something which is static in nature, means which is not going to change. Now if I talk about definition of agronomy or definition of horticulture, so that is something static, right? But on the other hand, if I say that what was the estimate for horticulture production for this particular year, then that becomes something that is current, right? Both are part of agriculture, but the difference is that definition part is static and something related to data, something related to news, something related to what's happening for the agriculture and rural development and what government is trying to do for the upliftment of rural society, for the upliftment of farmer, for improvement in agriculture technology, that becomes the current part, right? Now here you have to understand first thing that ARD is static and current, both type of question will be seen in the examination. But if I talk about weightage, okay, so weightage of static part is higher than the current affair ARD part, okay? If I talk about weightage, so static ARD का weightage बहुत ज़्यादा है आपके current affair ARD से, because ARD static की अगर हम बात करें out of your 40 क्वेश्चन, चलो पैटर्न भी देख लेते हैं एग्जामिनेशन का, ठीक है? ये फेज 1 का पैटर्न है, राइट? अब फेज 1 में यू विल सी जो आपका मेरिट सेक्शन है, दैट इज GA, ESI एंड ARD, वहां पे एग्रीकल्चर इज ऑफ 40 मार्क्स, राइट? नाउ आउट ऑफ दिस 40 मार्क्स आपके जो 35 to 36 मार्क्स है, ये ARD स्टैटिक के होते हैं. मोस्टली आपके 35 to 36 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ARD स्टैटिक. अब इससे क्या पता चलता है कि ARD स्टैटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी है और आप सोच रहे हो कि मैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर पढ़ के एग्जाम दे देता हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज अगेन स्टैटिक का वेटेज ही आप देख लो इतना ज्यादा है दैट you have to, you don't have any option, right? आपको ARD स्टैटिक पढ़नी ही पड़ेगी and it is very very important again. So अगर मैं फेज 2 की भी बात करूं तो फेज 2 में अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं, if you are applying from a journalist post, we have paper 2 of ESI and ARD, okay? Again paper 2 is of total 100 marks, okay? Out of this some questions are objective, some questions are descriptive type. So again पेपर 2 में जो वेटेज है ARD का वो भी 50-50 है. ESI से क्वेश्चन 50% क्वेश्चन होंगे, ARD से भी 50% क्वेश्चन होंगे. सो दैट मीन्स आपका जो फेज 2 के लिए भी ARD इंपॉर्टेंट है. अब फेज 2 में स्टूडेंट्स, आई वुड अगेन रिपीट, जो ARD स्टैटिक है वो थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर
होती है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, एंड आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है बेस्ड ऑन एआरडी स्टैटिक पार्ट। अगर आप सोचो कि एआरडी स्टैटिक नहीं करते हैं और सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट अगेन गोइंग टू हेल्प यू इन फेज 2, बिकॉज फेज 2 में आपको देखोगे जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो प्योरली मेजरली बेस्ड होते हैं एआरडी स्टैटिक पे। ओके, सो अगेन इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़नी ही पड़ेगी एग्रीकल्चर। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, राइट नाउ। अभी पढ़ना कैसे है, कैसे अप्रोच करना है, लेट अस डिस्कस ऑन दैट। सो फर्स्ट आपको क्या होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई नो many of you haven't read, many of you haven't, you know, you are not familiar about anything that is given in the syllabus, but still you have to read this subject, right? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। So what you have to do, you have to at least read out syllabus once, at least read out this syllabus once, and at least see what are the topics that are given in syllabus। ठीक है, सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस। अगर आपके पास ये नया सब्जेक्ट है, आपको नहीं पता है क्या पढ़ना है, तो स्टिक टू द सिलेबस, कवर ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द सिलेबस, बिकॉज जो आपका एग्जामिनेशन है दैट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस सिलेबस पार्ट ओनली। ठीक है, so this is the syllabus of ARD static. Now here one more thing we have is of rural development part. So students, this part is majorly your current affair part. Okay, so all the topics that is given in the rural development portion, you have to see all the current affair related to these topics. ठीक है, आपको current affair देखना है इन topics से related. Now ये हो गई syllabus की बात। Let's see अब क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं एग्जामिनेशन में। इज इट लाइक कि जो टॉपिक्स दिए हैं हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इन टॉपिक्स की। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, तो क्या हमें सॉइल केमिस्ट्री भी जाननी है, सॉइल फिजिक्स भी जाननी है, बिकॉज एग्रीकल्चर में ये सब चीजें हैं, बट कितनी डेप्थ में आपको इस चीज को पढ़ना है वो कैसे पता चलेगा, दैट विल बी थ्रू PYQs। ठीक है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, एंड व्हेन यू विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल सी बाय योरसेल्फ दैट क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन एग्रीकल्चर इज ऑफ इजी टू मॉडरेट टाइप। ओके, बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं रिक्वायर है फॉर क्लियरिंग नाबार्ड ग्रेड ए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पोर्शन। ठीक है, एग्रीकल्चर पार्ट जो है नाबार्ड का ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यू शुड जस्ट डायरेक्टली नो द मीनिंग ऑफ द थिंग्स। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इट इज रिटन मेजर सॉइल टाइप्स, ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि मेजर सॉइल टाइप्स क्या हैं। ओके, वो सॉइल कहाँ प्रेजेंट है इंडिया में, कौन सी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, देन उनका सॉइल ऑर्डर क्या है, इस एक्सटेंट तक आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है उसमें कौन से क्ले होता है, वो क्ले 2:1, 2:1, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सॉइल्स के नाम पता होने चाहिए। यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक थिंग अबाउट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलो, सो अब ये तो हो गया कि आपके मॉडरेट से इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन डेप्थ ARD नहीं पढ़नी है, आपको बेसिक ARD पढ़नी है, राइट। चलो, how to cover this ARD? So students, see, you have to divide the whole subject into this section as I have divided here. You can take the screenshot or you can download the PDF of this later on from the Telegram channel. Okay, so आपको पूरे syllabus को you have to divide it into the section, because again you can see there are different sections. First is of soil and water conservation, next is water resources, farm and agriculture engineering, then this is the whole different section where you are required to know about agriculture की definition क्या है, agronomy क्या है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप क्या है, लाइक सीड क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राई लैंड एरिया क्या है, सो दैट इज अगेन डिफरेंट सेक्शन। ठीक है, तो आपने ये सारे सिलेबस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना है, एंड देन यू हैव टू पिक वन सेक्शन एट अ टाइम। ठीक है, एक एक करके इस सेक्शन को पिक करना है, रेफर टू एनी बुक, रेफर टू द Google, or you have any course, refer to that course and start preparing these topic one by one। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज देन एंड नाउ। अब ये टॉपिक जब पढ़ते टाइम ये कैसे ध्यान रखें कि इस टॉपिक में भी इंपॉर्टेंट क्या है, सो दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ PYQ का एनालिसिस करो साथ साथ में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो। देखो, देयर कैन बी टू अप्रोच। ओके, फर्स्ट एनालाइज द PYQ, ओके, एंड देन मूव ऑन टू द प्रिपरेशन पार्ट। ठीक है, आपको ये सेक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, सो यू हैव टू सी ऑल PYQ रिलेटेड टू दिस सेक्शन। ठीक है,
Now here we have agriculture definition, meaning, branches, agronomy, cropping system and all and all. अब आपने क्या करना है, पहले तो आप क्या कर सकते हो कि इससे रिलेटेड PYQ देख लो, इस सेक्शन से रिलेटेड। जब आपने PYQ देख लिए, देन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि इस सेक्शन में भी क्या इंपॉर्टेंट है और कितना इन डेप्थ हमें जाना है ईच टॉपिक में, बिकॉज PYQ जो होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाबार्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको वो चीज आनी ही चाहिए बिकॉज वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था, राइट। सो आपने PYQ देखना है, फिर आपने इसको प्रिपेयर करना है। अगेन व्हाट यू हैव टू डू, जब आपने ये प्रिपेयर कर लिया, देन अगेन यू हैव टू रिविजिट द PYQ एंड यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस PYQ नाउ बिकॉज आपने ये चीज पढ़ ली है। उसके बाद यू शुड बी इन द पोजिशन ऑफ सॉल्विंग दिस PYQs। सो दैट इज द अप्रोच दैट यू कैन हैव। ओके, इससे क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, आप उस टॉपिक को उस डेप्थ में कवर करोगे और आप PYQ सॉल्व करके उस टॉपिक की फिर से रिवीजन प्रैक्टिस करोगे, राइट। सो दैट इज द अप्रोच विच यू शुड which you can apply for yourself, right? Similarly, आप ऐसी दूसरा सेक्शन है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड जितने भी PYQ है उसको देख लो, फिर डिसाइड करो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट करो, उनको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो एंड वो PYQ को अगेन रिविजिट करके सॉल्व करो, ठीक है। So that should be your approach. Now अगर पूछा जाए कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सो स्टूडेंट्स हियर इज द लिस्ट। ओके, बिकॉज एग्जामिनेशन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग वी हैव सीन दैट majority of question is being asked from these chapters, so you have to thoroughly read these chapter, that is especially agronomy, farming systems, soil and water conservation, very important students, you cannot miss on these chapter. Okay, it is very important. Then plantation and horticulture crop is again very important, animal husbandry is again very important, then we have fisheries and forestry. Okay, so ये chapters है जहाँ से majority of questions are seen in the examination. So what you can do, what you have to do along with the rest of the other topics, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस टॉपिक में अगर आप थोड़ा सा अपनी लिमिट एक्सटेंड कर सकते हो तो try to solve many questions. Okay, try to solve as many questions as you can, because again that will give you more understanding, more clarity what's important, and आपकी knowledge में और add होगा which you can miss on the syllabus part. ठीक है, syllabus पढ़ते टाइम आपने कुछ चीजें पढ़ी बट आपने solve किया कोई क्वेश्चन और वहां पे आपको कोई नई चीज पता चली, then थ्रू दैट सॉल्विंग द क्वेश्चन आप उस चीज को ऐड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपने जो भी नोट्स हैं उसमें, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट वी हैव इज ARD करंट अफेयर पार्ट, राइट। अब ये होगी ARD स्टैटिक की बात। अब करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ARD से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है they are very very important for both your phase 1 and phase 2 schemes से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्पेशली स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट मिस ऑन द स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्कीम्स आपने बहुत अच्छे से करनी है जो भी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। देन रिपोर्ट्स, स्टूडेंट्स रिपोर्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर कोई लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि फॉर से दिस ईयर एग्री सेंसस इज आउट और लाइफ स्टॉक सेंसस इज आउट, देन यू हैव टू हैव आई ऑन दैट सेंसस, बिकॉज अब वो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रीवियसली भी इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। नबार्ड एनुअल रिपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 1 फेज 2 बट ऑल्सो फॉर इंटरव्यू। तो नबार्ड एनुअल रिपोर्ट आपको करनी है। जितनी भी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है अगर उसमें कोई डेटा है दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन, ठीक है। So that is regarding report, and then we have current affair, general current affair. कोई MOU साइन हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, कोई ऐप लॉन्च करी है, सो ऑल दैट यू हैव टू नो रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करंट अफेयर। अब स्कीम्स में क्या क्या कवर करोगे, स्कीम्स में आपको मिनिस्ट्री कवर करनी है, लॉन्च ईयर, फंडिंग, बजट एलोकेशन, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, टारगेट बेनिफिशियरी क्या है इस स्कीम्स के, कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व है अगर ये स्टेट स्कीम है, और क्या करंट डेवलपमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर स्कीम में, दैट यू हैव टू सी। ओके, देन रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट है रिलेटेड टू योर सिलेबस, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, दैट यू हैव टू कवर, ठीक है। अब नबार्ड भी इसमें आ जाता है, नबार्ड की भी एनुअल रिपोर्ट आपको कवर करनी है, ठीक है। और करंट अफेयर जो आपके जनरल
जनरल MOU साइन होते हैं, जनरल करंट अफेयर है, कोई गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है फॉर डेवलपिंग द फार्मर इनकम और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, दैट यू हैव टू कवर. Clear? So that is regarding your current affair part of agriculture and rural development. Now students, here again I would like to highlight this section. ठीक है, ये जो हमारा सिलेबस का लास्ट वाला पार्ट है, यहाँ से रिलेटेड आपको इस सेक्शन को भी देखना है, इसको रीड करना है, इससे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर है दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑन. ठीक है, चलो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ARD स्टैटिक के लिए वी हैव डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है, फर्स्ट एंड foremost source which I recommend is regarding is Fundamentals of Agriculture by Arun Katyan. See, I suggest this book because this is a quite यहाँ पे थोड़ा सा explain किया गया है. It's not one liner. ठीक है, आपको थोड़ा सा content मिलता है, आप उसको पढ़ोगे, आप उसको समझोगे, right? One liner में आपको चीजें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है if you are a beginner and you are just starting with this subject. So Arun Katyan is a good book for you. ठीक है, बट इफ यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर की, आपने पहले पढ़ा है, देन यू कैन गो फॉर नीमराज सुंडा एंड फॉर द RK शर्मा एग्रीकल्चर एट क्लास. ठीक है, देन अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रिपेयर करनी है वो यहाँ नहीं मिलेगी, आपको अरुण कात्यायन में नहीं मिलेगी. फॉर दैट यू कैन रेफर टू द एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बाय जगदीश सहाय. ओके, देन सेम फॉर फिशरीज ICR की एक बुक है एंड टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाय GC बनर्जी, ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड. अब ये जो 3 बुक्स है ना, ये 3 बुक हैं, इसको आपको पूरा कवर नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस में दिए हैं उसको ही कवर करना है विद दिस 3 बुक्स. ठीक है, अरुण कात्यायन का आई वुड से पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 में सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस वो है. ठीक है, तो पार्ट 2 आप स्किप कर सकते हो, बट पार्ट 1 यू कैन रेफर. क्लियर? चलो, विद दैट लेट्स मूव अहेड विद द सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर. सो करंट अफेयर के जो आपकी स्कीम्स के लिए है, सोनली रिलाई ऑन PIB. PIB is a very important and authentic source to cover your scheme part. Again, यहाँ से लाइन उठा के क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक है, तो PIB बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है फॉर स्कीम. और जो नेशनल बॉडीज रिपोर्ट रिलीज करती है या कोई करंट अफेयर है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दैट इज कवर्ड विथ PIB. अब आपको कोई एक न्यूज़पेपर को भी रेफर करना है, बिकॉज अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है दैट इज नॉट कवर्ड इन PIB. ओके, वो आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगी. देन कृषि जागरण इज ऑल्सो वन ऑफ द अनदर सोर्स, क्योंकि कृषि जागरण में जो प्राइवेट प्लेयर्स है व्हाट दे आर डूइंग फॉर एग्रीकल्चर दैट इज ऑल्सो कवर्ड. सो कृषि जागरण इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स. देन मिनिस्ट्री के जो रिपोर्ट्स है दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वो आप रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाके कवर कर सकते हो. NABARD की रिपोर्ट यू can visit to the NABARD website. Clear? So I hope I am clear on what is ARD static syllabus, what is asked in ARD current affair, then how you can prepare both of this. ठीक है? So I hope you are clear with this, but before closing this video I have an announcement that we have launched a comprehensive guidebook for you. If you have any doubt regarding NABARD examination and you want the PYQs for yourself and syllabus of this NABARD examination, that is provided in this guidebook. You can download it for yourself. For that you have to just go to the description box, click on the link, register yourself and avail this guidebook for yourself. So with that students, I would like to tell you about our courses. We have Gold Pack and Silver Pack. In Gold Pack, we provide the content of phase 1, phase 2 and interview preparation. In Silver Pack, you get the preparation for phase 2 and interview. Rest, ESI, ARD and GA is integrated with phase 2. So phase 1 के लिए phase 2 के ESI, ARD, GA का भी आपको preparation हो जाती है. ठीक है, so these are our courses. If you want to refer, you can check it out, right? Rest, that was all for this video. I hope you have enjoyed. So if you still have any query regarding agriculture subject and if you still feel like मैम ये चीज़ cater नहीं हुई है इस particular video में, मेरी personal ये चीज़ query है, you can always comment down in the comment section. I'll try to reply it. Okay, I will reply it for sure. But जो भी query है, don't keep it to yourself. Just try to comment down. We will I'll be surely replying to your comments. Okay, so that's all for this video students. Thank you everyone. Thank you so much.